زلیخا کو بینائی مل گئی؟ کیوں نہیں؟ پیامبر دعا کرتا ہے تو خداوند عالم ضرور مستجاب کرتا ہے۔ بینائی تو اس کا ادنا ترین معجزہ ہے۔ بانو، بانو بانو، بانو، تم دونوں کتنی بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہو۔ بانو، تم دونوں نے اپنی تمام عمر میری خدمت کرتے گزار دی۔ بانو، میں تم دونوں کو دیکھ سکتی ہوں، میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں۔ آیا آپ بھی لطف و عنایت خداوندی کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کس طرح شکر ادا کروں؟ آیا سجدہ کروں تو کافی ہوگا؟ ہاں، سجدہ شکر بجا لاؤ کہ بندگی کی خوبصورت ترین تجلی سجدہ ہے۔ کاہنان معبد آمون کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب بھی شک کی کوئی گنجائش ہے؟ میں کچھ نہیں دیکھ رہا۔ ابھی لمحے بھر پہلے آپ نے مجھے ہوشیار کہا تھا، بس اب میں اتنا بھی احمق نہیں کہ اس قسم کے تماشوں پر یقین کر لوں۔ عمر بھر کے جھوٹ اور مکر و فریب نے آپ لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا کر دیا ہے، اور اب آپ لوگ اس گمراہی سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ کس چیز پر یقین کرنا ہے مکانہ ہے؟ خدائے یکتا کی قدرت پر یا زلیخا کی بینائی پر؟ ہاں، مجھے دونوں پر یقین نہیں۔ میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ زلیخا کبھی نابینا بھی تھی۔ زلیخا کی نابینائی کا شہرت تو شہر بھر میں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ البتہ مجھے آپ کی بصارت پر شک ضرور ہو رہا ہے۔ آپ کو زلیخا کے نابینا ہونے میں شک ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کو اس بات کا تو یقین ہے نا کہ زلیخا ضعیف ہو چکی ہیں؟ اگر یہ جوان و خوبرو ہو جائیں تو کیا پھر ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے، البتہ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جس دن مردے زندہ ہونے لگے اور تاریکی نور ہو جائے گی تو زلیخا بھی جوان ہو جائے گی۔
خوب تو آنکھ ماں ہوں، زلیخا کو جوانی بھی مل گئی. میں جانتا تھا وہ قلب جس نے ہزاروں بندگان خدا کو کفر و شرک و بت پرستی کی جانب تحریک دی ہو، وہ قلب کبھی ہدایت کے نور سے منور نہیں ہوا کرتا. اب بھی نہیں چاہو گے کہ یزداد سیف کے خدا پر ایمان لے آؤ، اس عاجز و مجبور آمون کی پیروی اور پرستش کرو. میں تو یزداد سیف کے پاس جا رہا ہوں. اب میں مزید آمون کی پیروی نہیں کرنا چاہتا. آیا نبی خدا اس گناہگار کو قبول کر لیں گے؟ خوش آمدید خوفو، خوش آمدید. بانو، بانو زلیخا، بانو، آنکھیں کھولو زلیخا، اٹھیے بانو. زلیخا، بانو، بانو ہوش کیجئے. بانو آنکھیں کھولیے. انہیں ہوش آ گیا. آئینہ، آئینہ. یہ ناقابل یقین ہے. خدا ایسی عنایت کسی کسی پر کرتا ہے. خدا تمہیں بہت پسند کرتا ہے. بانو، آپ کو مبارک ہو. خوشی ہے کہ آپ کو دوبارہ جوانی اور خوبصورتی مل گئی. میں دیتا ہے پینا اور خوبصورت چہرہ تو پہلے بھی رکھتی تھی، لیکن تب میں اس کے خالق کو نہیں پہچانتی تھی. میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے اس گناہگار کو اپنی عنایات کے لائق جانا. بانو، جناب یوزار صرف دروازے کے پیچھے تشریف فرما ہے اور غالباً بانو زلیخا سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں. نہیں، ابھی نہیں. ان سے معذرت کر لیجیے اور فی الحال مجھے معاف رکھیں. اگر اجازت فرمائیں تو میں چند روز اپنے خدا کے ساتھ تنہا رہنا چاہتی ہوں اور سوائے خدا کے کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، اس اجتناب کی وجہ کیا ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہو گیا. بس اتنا
इतना जानती हूँ कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा। अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? बेहतर है, होश में आ गई है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासिर है। यानी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो कह रही हैं कि फिलहाल उनका आपसे मिलना मुमकिन नहीं। वो चाहती हैं कि चंद रोज अपने खुदा के साथ खलवत में रहें। वो तन्हा रहना चाहती हैं। आपको उनकी ये बात समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ना ही आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और ना ही इज्तनाब। मेरा ख्याल है मैं जुलेखा की इस कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ। उन्हें तन्हा छोड़ दें। मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज और न्याज के लिए तन्हाई की जरूरत है। मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं। खुशा नसीब जुलेखा के, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। वो सालों मारी मारी फिरी, घर घर तलाश किया, तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची हैं। खस्ता और दरमानदा दीदार यूसुफ की उम्मीद में दक्कुल बाब किया, लेकिन वो जिसने दरवाजा खोला यूसुफ से कहीं ज्यादा खूबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कबूल किया। इंसाफ तो यह है कि यूसुफ कुजा और ज़ीबाए मुतलक खालिक यकता कुजा। मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायत खुदावंदी पर जो जुलेखा को नसीब हुई हसद करूं। हसद करना आसनाद के शाय निशान है भी नहीं। जुलेखा पर तो रश्क करना चाहिए। वो दूसरे माशूक के साथ खलवत गुज़ी हैं और मेरे ख्याल में ये खलवत नशीनी और वजद की कैफियत उन पर 40 रोज तक तारी रहेगी। 40 रोज? हाँ, इससे पहले वो खलवत नशीनी तर्क नहीं करेंगी। साल हा साल उन्होंने आपका इंतजार किया है। अब आपकी बारी है कि आप कुछ अरसा उनका इंतजार करें। आज भी वो लोग नहीं आए। आप रो क्यों रही हैं माँ? कारवां वालों ने बताया तो है वो भी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे। आप लोग अकेले क्यों आ गए? थोड़ा इंतजार कर लेते ताकि फर्जंदानी याकूब भी साथ ही आ जाते। अगर हम लोग किनान जल्द ना लौटते तो आप सब लोग भूख से मर चुके होते। दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मजीद कितना रुकना होगा। वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई।
देख रहे हो हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुंतजिर खड़े हैं। हाँ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो बाबा भी नजर आ रहे हैं। ये धूल कैसी है दीना? वही लोग हैं। हाँ, ये उड़ती हुई धूल चौपायों की ही है। आ गए, वो लोग आ गए। दादा जान, वो लोग आ गए। आ गए, आ गए, वो लोग आ गए, कारवां वाले आ गए। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चले, चलो उनकी मदद करें। आ गए, नबी खुदा हमारे बेटे आ गए। सलाम। सलाम। आप लोग इतनी देर से क्यों आए? सांस तो लेने दो, फिर वजह भी बता देंगे। चलें। खुदा का शुक्र है। देखा, हालांकि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती। वो तो जाहिर है, वो इनसे नाराज जो हैं। बिन्यामीन, बाकी लोग भी आ गए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। ठीक हो? मैं आ गया। सब ठीक ठाक है ना? कैसे हो तुम? ठीक है। कैसे हो? खुश आमदीद मेरे भाई। सलाम। सलाम। तुम कैसे हो? बेटे? सलाम। हम ठीक हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों, हम सब तो परेशान हो गए थे। खुश आमदीद मेरे भाइयों। हमारा कोई कसूर न था। हम तो मिस्र पहुंचते ही गंदम खरीदकर फौरन वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया। यानी हमें अपना मेहमान बना लिया। अजीज मिस्र को हम किनानी भाइयों की पजीराई करने का शौक हो गया था। वो तो अगर हम अजीज मिस्र से आप लोगों को इंतजार, भूख और परेशानी का न कहते तो वो हमें अब भी नहीं आने देते। बाबा कहाँ हैं? जिस रोड से आप लोग गए हैं तब से परेशान इस रास्ते पर आंखें लगाए बैठे रहे। खास तौर पर उस वक्त जब किनानी आप लोगों के बगैर वापस लौट कर आए तो बहुत परेशान हुए। अभी तक तो यही थे, जब तुम लोगों की तरफ से आसूदा खातिर हो गए तो अपने हुजरे में चले गए। हाँ, हमने देखा था उन्हें। यानी बाबा अब भी हमसे नहीं मिलना चाहते? वो हक पर हैं। यूसुफ की याद भुला देने वाली नहीं। वो नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। कहा शाम
चलो शाबाश, चलो चलो सब घर चलते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब, खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस कीनान चले। चलिए वापस किनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है, हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदावंद पर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बर पैगंबर खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर, खुश हो के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया था। मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था, हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदुम है जो अजीज मिस्र ने हमें दी है, बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशाद आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदुम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनानियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और क़याम ताम करवाते हैं। यह सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की। तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये 2 तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकता परस्त थे। नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत है। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अज़रुए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना?
या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के बस तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती।